Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, Module 2 Research Paradigm, Advanced Dimensions of Research Paradigms. After the reading of this content and these lectures, you may be able to identify and explain the philosophical that lead to paradigm conflicts in research. Identify and explain the philosophical concept that lead a paradigm conflict in research. It means you be able to what are the philosophy behind that. Second one, evaluate the implication of a paradigm and their misalignment for research, design, methodology and knowledge production. Evaluate the implication of paradigm misalignment. उसका जो alignment है वो अगर सही नहीं है तो that you can identify and reflect on their own positionality and recognize how it may influence potential paradigm tensions in collaborative or applied research. Next one, purpose strategy to manage or bridge paradigm conflicts in research context. And earlier what we have learned, on the basis of that we can compare positive, non-positive on the basis of dimensions, ontology, epistemology, methodological, researcher's role and goal of research. So here comparative analysis of major research paradigms that are on positivism on the basis of ontology, objective reality, non-positivism, reality is dynamic and plural. Like that, positivism, epistemology, value-free, detached, non-positivism, epistemology focused, practical, context-based, positivism, methodology, quantitative and deductive, non-positivist, mixed method and mostly qualitative, positivism, researcher role, objective observer, and non-positivist, problem solver. Positivism, goal of research, generalizable truths, and non-positivist, practical outcomes. So here this was a comparison of positivism and non-positivism on the basis of dimensions which we have discussed. Now interpretivism and critical theory on the basis of the dimensions which we have earlier discussed. Ontology, multiple realities in interpretivism, critical theory, reality shaped by power. Interpretivism, epistemology, value-laden, co-created, critical theory, value-bound and political. Just methodology of the interpretivism, qualitative and inductive, critical theory methodology, participatory and dialogic, researcher role in interpretivism, active participant, critical theory advocate, public change agent. तो यहाँ जो चीज़ें हैं एकदम पहले हम लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझा हुआ है, but we are here first we compare, after that we proceed. Goal of research of interpretivism, understanding meanings, critical theory, social transformation. And now emerging and contemporary paradigms की बात करें तो pragmatism, which focuses what works in real world problems. Pragmatism generally real world से associate करके और उनकी समस्याओं पे ध्यान देता है और इसका मोटिव पूरी तरीके से जो समस्याएं एग्जिस्टेंस में है उसको दोनों
मेथड के थ्रू ओवरकम करना है या मिक्स मेथड के थ्रू, एक्सेप्ट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, एंड कॉमन इन एक्शन रिसर्च एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन. तो हियर pragmatism is more feasible in the contemporary or emerging, we can say contemporary design. Like its focus is to deal the problem as it can be overcome. So its focus is to resolve the problems at any cost. So therefore, pragmatism follow the qualitative and quantitative method. So it can be considered as the common in action research and educational evaluation, both practices. Postmodern reject universal truths, emphasize subjectivity and narrative. Challenges objectivity and authority in knowledge production. Postmodern is, what is universal truth? That is may, but how that are in existence, उसके लिए subjectivity और narrative पे focus होता है. It challenges objectivity, challenge मैं इसको क्यों मानूं? Why? Yes, this may be beneficial for you. धर्म की परिभाषा लोगों ने अपने अपने तरीके से दी हुई है. तो धर्म को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में होगा. तो therefore it challenges objectivity and authority in knowledge production. जो नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है उसके अथॉरिटी को वो फोकस में लेकर आकर बात करते हैं. फेमिनिस्ट पैराडाइम, जो फेमिनिस्ट पैराडाइम है उसका फोकस जेंडर वॉइसेस पे एंड मार्जिनलाइजेशन के मेजरली है, बट हियर दे फोकस ऑन द जेंडर वॉइसेस. यूजेस रिफ्लेक्सिविटी, लाइफ स्टेज एंड एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज, इनको यूज करके वो फेमिनिस्ट पैराडाइम की तरफ मूव करते हैं. ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम, गोल प्रमोट इक्विटी एंड जस्टिस, यस, वैल्यूज कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेटरी रिसर्च. इट्स transformative paradigm. This can be considered as the for the promotion of equity and justice. Researcher positionality and reflexivity. Positionality, acknowledging the researcher's identity, power and worldview. Reflexivity, ongoing self-examination of how research is shaped by the researcher. पोजिशनलिटी में इंडिविजुअल्स की अपनी आइडेंटिटी इज देयर, मेल फीमेल, रूरल अर्बन बैकग्राउंड्स, लिटरेट फैमिली का, इलिटरेट या एसईएस, वो सारी चीज़ें पोजिशनलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसमें आइडेंटिटी, पावर एंड वर्ल्ड व्यू. बट रिफ्लेक्सिविटी, ऑनगोइंग सेल्फ एग्जामिनेशन, हाउ रिसर्च इज शेप्ड बाय द रिसर्चर. मार्क्सिस्ट विचारधारा की मेरी विचारधारा है, तो मेरा जो इम्पोज थॉट प्रोसेस होगा वो कहीं ना कहीं उस तरीके से जाएगा. तो ऑन गोइंग कि हाउ रिसर्च इज शेप्ड बाय द रिसर्चर, रिसर्चर कैसे उसको अपनी बायसनेस के साथ मोड़ लेता है. तो देयरफॉर हियर इट इज कंसिडर्ड इसेंशियल इन इंटरप्रेटिव क्रिटिकल एंड फेमिनिस्ट पैराडाइम. ये इसेंशियल है researcher positionality and reflexivity. Ethical consideration within paradigm. Paradigm जो positivism, non-positivism, interpretivism, critical feminist, इनकी जो ethical consideration है वो क्या है? Positivism की ethical consideration consent, anonymity, data integrity, इनको ध्यान रखना है. नॉन पॉजिटिविज्म में एथिकल आउटकम्स फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. इंटरप्रेटिविज्म में म्यूचुअल रिस्पेक्ट,
पार्टिसिपेंट्स वैलिडेशन, क्रिटिकल फेमिनिस्ट में पावर रीडिस्ट्रीब्यूशंस, इमेंसिपेशन, एथिक्स ऑफ केयर। तो ये इनके जो पर्टिकुलर पैराडाइम्स और उसके एथिकल कंसिडरेशन है, इनको ध्यान में रखने होंगे। अब बात करने होंगे इश्यूज ऑफ पैराडाइम फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द emerging paradigms. Interdisciplinary research is evolved a new paradigm, and by the help of interdisciplinary research we are moving very fast in the current scenario. So it generally associated with some issues. Multiple paradigms often collide in interdisciplinary studies. If we are going to consider varieties of paradigms, so often collide in interdisciplinary studies. Second, challenges include epistemological conflicts and methodological tensions. Which should be used? What is better? So these can be there. Coping strategy, how to cope with this? So use paradigm bridging. Yes, today is the scenario for the use of varieties of thought. So we can go with the, if we are following the interdisciplinary, then we can go with the paradigm bridging and finding common grounds, values of context and complexity. हमें common ground ढूंढने होंगे और उसकी सहायता से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो that will be more beneficial in the interdisciplinary research, and this will be a good paradigm for the interdisciplinary research. So therefore there is required to paradigm bridging. Practice meta-reflexivity, openly discussing paradigm tensions in the research process. जो कुछ भी प्रॉब्लम है, openly discussing paradigm tensions in the research process. तो उस पे जब हम मेटा रिफ्लेक्सिविटी को प्रैक्टिस में लाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। जितने भी पैराडाइम हैं उनके ऊपर हम आगे बढ़कर देखें तो या उसमें से इन्फॉर्म करें या इन्फर करें व्हाट इज देयर। पैराडाइम कॉन्फ्लिक्ट्स, जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। अब जैसे पैराडाइम कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिसर्च ऑफन अराइज ड्यू टू डीप रूटेड डिफरेंसेज इन फिलोसॉफिकल एजम्पशंस। यस, यहाँ पे जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं इन रिसर्च ड्यू टू डीप रूटेड डिफरेंसेज इन फिलोसॉफिकल एजम्पशंस। अब उसकी अलग अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। कभी जो पावलोव की कंडीशनिंग थियरी और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, इन दोनों की पैराडाइम अपनी अलग तरीके की थी, लेकिन विद द पैराडाइम कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम एक पैराडाइम बना लिए तो दूसरी पैराडाइम नहीं आ सकती। जब कभी ये कॉन्सेप्ट था कि सन राइजेस फ्रॉम द, या यहाँ पे एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पहले की ये पैराडाइम थी, पहले की ये संकल्पना थी कि सन इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। आफ्टर दैट वी गेट दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये एक पैराडाइम पहले की थी और दूसरी पैराडाइम बाद में वो बाहर आई। तो इस तरीके से जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट कुछ नया डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो क्यों है? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल प्रेशर
एंड इंटरडिसिप्लिनरी डाइवर्सिटी। वो उसका देखने का नजरिया अपना अलग है, दूसरे का देखने का नजरिया अलग है, लेकिन ये कभी कभी फायदेमंद भी होते हैं कि उससे दूसरी चीजें निकल कर आ जाती हैं अगर, लेकिन पैराडाइम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट वर्ल्ड व्यू को कंसीडर करना होगा। तो देयर आर फ्यू रीजंस व्हाई पैराडाइम कॉन्फ्लिक्ट्स हैपेंस, बिकॉज हमारा जो देखने का नजरिया है वो दूसरा है, दूसरे का दूसरा। तो इफ we are going to by the interdisciplinary approach, we should adopt and accommodate the diversity. So here we can say different worldview hai, researchers may hold incompatible ontological or epistemological beliefs. For example, a positivist see reality as objective and measurable, while non-positivist believes in multiple subjective realities. तो दो जैसा कि अब हम लोग प्रीवियस वी हैव एक्सप्लोरेटरी, अगर दोनों को एक साथ लेकर आते हैं तो एक बेहतर पैराडाइम के साथ हम जा सकते हैं। अब वो पैराडाइम जो इन एग्जिस्टेंस है तो उसको इग्नोर एकदम से ना करें, लेकिन धीरे धीरे हमें ये सिद्ध करना होगा कि इसकी जगह पे दूसरी पैराडाइम्स आ सकती है। अगर एक पैराडाइम के साथ काम कर रहे हैं, दूसरे पैराडाइम के साथ दूसरा काम कर रहा है, और इफ दे आर कमिंग विथ ईच अदर, तो देयर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विल बी देयर विथ देम बाय द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी। व्हाट दे आर यूजिंग, व्हाट आई एम यूजिंग, बोथ में बी कंट्राडिक्टरी। तो दोनों जब कंट्राडिक्टरी हो सकते हैं तो उस समय ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है, क्योंकि एक कह रहा है कि नहीं मुझे इसी मेथोडोलॉजी के साथ जाना बिकॉज ही इज पॉजिटिविस्ट, एंड अदर जो कह रहा है ना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, हमारे इसके नैरेटिव क्या है वो डिस्क्रिप्शंस दैट विल बी गुड। तो इस तरीके से जो डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज हैं वो क्रिएट करते हैं पैराडाइम कॉन्फ्लिक्ट। इंस्टीट्यूशनल एंड डिसिप्लिनरी नॉर्म्स। अब सेकेंड जो है वो यूनिवर्सिटीज, फंडिंग बॉडीज एंड जर्नल्स often privilege certain paradigms, especially positivism, due to its association with objectivity and generalizability. तो ये जो डिसिप्लिनरी कुछ नाम्स हैं या इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं, उनका देखने का नज़रिया जो है वो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस का अपना देखने का नज़रिया और जो डिसिप्लिन उसके अपने नाम्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बनाते हैं। तो यूनिवर्सिटी, फंडिंग बॉडीज एंड जर्नल्स ऑफन प्रिविलेज सर्टेन पैराडाइम्स, वो किसी कुछ पैराडाइम्स के साथ हमेशा बने रहते हैं। और जैसे कि पॉजिटिविज्म की जो अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसको मैक्सिमम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विथ ऑब्जेक्टिविटी एंड जनरलाइजेबिलिटी। तो हम जो पैराडाइम कॉन्फ्लिक्ट्स इसीलिए अराइज होते हैं कि कोई किसी के साथ खड़ा है और कोई किसी के साथ खड़ा है। तो जैसा अभी देखा कि हम लोगों ने मैक्सिमम जगहों पे पॉजिटिविज्म पैराडाइम के साथ ही लोग काम करते हैं, चूंकि लोग मानते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिविटी अच्छी है और इसकी जनरलाइजेबिलिटी इसमें पॉसिबल हो जाती है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बनता जाता है। Interdisciplinary and applied research settings. Behavioral and social science research often involves cross-disciplinary teams, as educators, sociologists, psychologists, each trained in different traditions. तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जा सकते हैं, क्योंकि जब हम इंटरडिसिप्लिनरी में जा रहे हैं तो वहाँ पे बिहेवियरल एंड सोशल साइंस रिसर्च में बहुत सी जो क्रॉस डिसिप्लिनरी काम में आती हैं, तो वो अब कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाते हैं या उनके आइडियाज़ को एकोमोडेट कर पाते हैं, दिस विल बी मोर टफ विद इन इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड रिसर्च सेटिंग्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हियर आल्सो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज।
अब हमें जो बात करनी है कि व्हाट पैराडाइम बेस्ट अलाइन विथ विच टाइप ऑफ रिसर्च एंड योर रिसर्च वर्ल्ड व्यू। अब जैसे कि आप क्वालिटेटिव के लिए ही केवल सोच रहे हो या क्वांटिटेटिव के लिए सोच रहे हो या मिक्स मेथड के लिए सोच रहे हो, आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं और कैसे आप प्रोसीड करने जा रहे हो, तो वो बहुत ही बेहतर होगा कि यू शुड आइडेंटिफाई फ्रॉम द बिगिनिंग दैट व्हाट इज योर पोटेंसी। हम अगर बात करें कि हमारी पोटेंसी क्या है हमारे पास, उसको अगर हम समझ पाएं और उसके बिहाफ काम करने बढ़ें तो हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे। जैसा कि हम कॉन्फ्लिक्ट में जब बात कर रहे हैं तो हमारे वर्ड भी अलग अलग हैं, तो वो वर्ड भी जब अलग अलग हैं तो हमें एक साथ कैसे आ सकते हैं, इसके लिए हमें एफर्ट करने पड़ेंगे। और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होगा और उसकी मेथडोलॉजी को भी हमें समझना होगा, उसके बिलीफ्स को भी समझना होगा और उसको समझ के हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा। तो इंटरडिसिप्लिनरी दो तरीके से भी हो सकती है। एक तो एक अपने ही चश्मे से देखे, जो लेंस वो लगा के रखा हुआ है, और दूसरा दूसरे चश्मे से लेकर देखे, और दोनों को बाद में हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। या हाउ वी आर परसीविंग कम्युनिकेट टू अदर्स, वो भी उस नजरिए से देखे और दूसरा भी दूसरे नजरिए से देखे, तो दैट कैन बी देयर, बट देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज जो डीप रूटेड डिफरेंसेज हैं इन आइडियोलॉजी या थॉट प्रोसेस या थॉट जो आइडियोलॉजी है उसके भी आप, तो देयरफॉर दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक, डिफरेंट वर्ल्ड व्यू। एंड जो डिसिप्लिनरी नॉर्म्स उनके भी आप, इंटरडिसिप्लिनरी अप्लाइड रिसर्च सेटिंग, तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं हमें एक अलग सेटिंग्स की तरफ ले जाते हैं जिससे कि हम आगे मूव ऑन कर नहीं पाते। और यहाँ जो आप एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं कि कंपेयर सम प्रीवियस रिसर्चेस विथ अनदर पैराडाइम एंड नोट विथ चेंजेस डू यू फाइंड, तो आप क्या उससे पाते हो, तो कौन सी पैराडाइम आपके सामने फिट होती है वो आपको देख सकते हो। तो हियर वी हैव लर्न फ्यू थिंग्स and by these prompts and activities you can strengthen your insight about the concepts, and by the readings these you can strengthen. Thank you.